Hello my dear friends, once again I am here and almost this is first live class in which I am going to give you some questions based on literature, and here you can have more important things regarding your exam. I welcome you all to RBS Classes, the Pariksha Guru channel, and I would like to request you all to watch, like, subscribe and share. In order to get the notifications, you must press the bell icons. And in this live class, we are going to solve some questions based on literature, and these are important questions regarding your exam. At least one question you will find in your exam out of the questions you are going to solve today. So directly I shift to my topic, and the topic is some questions you are going to have. The very first question you have before you, आपका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो आप देख सकते हैं. According to Aristotle, which is the soul of tragedy, or what is the soul of tragedy? Now, if you have to solve this question, अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो first of all you must go through the definition of tragedy by Aristotle. Aristotle ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है वो आपको पता होना चाहिए. The definition of tragedy, which he says in his definition of tragedy, that tragedy is an imitation of action. Tragedy is an imitation of action. Look here. Tragedy is an imitation of action. Here action you can call the synonymous to plot. Plot. What plot is? Plot is the proper adjustment of incidents. Aristotle divided tragedy into 6 parts, or he said that there are 6 the most important constituents of a tragedy: plot, character, thought, diction, spectacle and melody. And plot comes first, and this is in accordance with their importance. जो मैंने 6 तत्व बोले हैं वो अपने महत्व के अनुसार रखे गए हैं. मतलब जो सबसे पहले आता है वो है प्लॉट. तो प्लॉट सबसे महत्वपूर्ण अंग है अरिस्टोटल के अनुसार किसी भी ट्रेजेडी का. सबसे महत्वपूर्ण अंग है. तो अगर सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है हमारी आत्मा. तो ट्रेजेडी की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह प्लॉट. इसलिए व्हाट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी? योर आंसर शुड बी सी. इट इज प्लॉट. कैरेक्टर कम्स सेकेंड, थॉट कम्स थर्ड, डिक्शन कम्स फोर्थ, लेकिन प्लॉट पहले नंबर पर आता है. अरिस्टोटल ने प्लॉट 2 हिस्सों में बांटा और कहा एक होता है सिंपल प्लॉट, एक होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट. ठीक है, तो आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी? दिस इज प्लॉट, एंड दिस हैज बीन वेल बीन डिस्कस्ड इन हिज पोएटिक्स. उनके पोएटिक्स में अच्छे तरीके से इसे डिस्कस किया गया है. तो आपका आंसर है प्लॉट. नाउ कम्स टू सेकंड क्वेश्चन. दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बिफोर यू. आपके सामने बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं. ऐसे क्वेश्चंस या तो नॉर्मली एग्जाम में कैंसिल कर दिए जाते हैं या आपके सिलेक्शन का कारण बनते हैं. कहा गया है, हु कॉल्ड चौसर the father of English poetry? It is well known that Chaucer is known as the father of English poetry.
अंग्रेजी काव्य के पिता कहे जाते हैं चौसर, ये हर कोई जानता है। एवरीवन नोज दैट चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। यू नो दैट चौसर वाज बोर्न समवेयर इन 1340 and died somewhere in 1400. ठीक है? Chaucer is known as the father of English poetry. Now the question is that who called him the father of English poetry? अंग्रेजी काव्य का जनक उन्हें किसने कहा? अब यहां दो ऑप्शन आते हैं आपके सामने, एक होते हैं ड्राइडन और एक होते हैं आर्नल्ड। ठीक है? Sometimes it is said that Arnold called him the father of English poetry. Sometimes it is said that Dryden called him the father of English poetry. But आपका जो आंसर होना चाहिए वो जहां तक मैं समझता हूं वो ड्राइडन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्राइडन called him, he called him the father of English poetry, the father of English poetry in his writing, refers to the fables ancient and modern. This is the name of the writing, preface to the fables ancient and modern, which was published in 1700. And Arnold only said, Arnold का जो स्टेटमेंट है केवल इतना है, with him was born our real beauty or poetry. ठीक है? With him was born our real beauty or poetry. तो इतना कहने से हम ये नहीं मान लेंगे कि उन्होंने कहा द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। हमें तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट चाहिए, हमें तो एग्जैक्टनेस चाहिए एकदम। ठीक है? तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ड्राइडन होना चाहिए। मैंने ये भी लिख दिया है कि कहां उन्होंने ये बात कही है। So now don't get confused. In most of the books you will find that Arnold called him the father of English poetry, but this should not be Dryden. Dryden is known as the father of English criticism और वहीं से ये सारी चीजें होती हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। Heroic couplet was first used by. Now heroic couplet. Heroic couplet, couplet means आप समझते हैं दो लाइंस जो राइम करती हुई हों, couplet कही जाती है, pair of lines. और heroic couplet, it is something different from couplet in a way that you find a kind of conflict between these two lines. So heroic couplet was first used by, this is Chaucer. In his writing, the legend, this is the spelling of Chaucerian period, ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको हम कैपिटल से कर दें तो आपकी समझ ज्यादा आएगा। द लेजेंड of Goode Women. Look at the spelling. Don't think that this is wrong spelling. ऐसा मत समझिएगा कि ये गलत स्पेलिंग है, बल्कि this is Chaucerian spelling. ये चौसर के पीरियड की स्पेलिंग है, तो इसको आप गलत समझने की कोशिश मत करिएगा। तो the heroic couplet was first used by Chaucer in the legende of Goode Women. Keep inside your brains. Now next question, question number 4. Who wrote the poetics? Poetics किसने लिखा?
A celebrated treatise it is. Poetics is the most influential book of classical period on dramatic theory. ड्रामेटिक थियोरी के ऊपर लिखी जाने वाली सबसे प्रभावशाली अगर कोई रचना है तो है पोएटिक्स। अगर इसे भी कोई न जाने कि ये कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, किसने लिखी, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस वॉज रिटन बाय Aristotle, Aristotle, who once said that man is a social animal, जिसने कभी कहा था कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। हालांकि आधुनिक काल में ये जो समाज था धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और असोशल शब्द इस डेफिनेशन से निकल गया और अब मैन इज एनिमल कहना ज्यादा उचित नजर आता है एक्चुअलिटी में। तो who wrote the poetics? Poetics is a treatise. Poetics is a critique. Poetics is a critical work. Poetics is a book on theory of drama. ड्रामेटिक थियोरी के ऊपर लिखी गई है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली बुक रही है ये, जो कि लगभग 335 BC से 330 BC ये ज्यादा प्रभावशाली है के बीच कहीं लिखी गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 330 BC कह देंगे तो ज्यादा उचित होगा। पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने अपनी थियोरी ऑफ ट्रेजेडी दिया है, ट्रेजेडी के डेफिनेशन दिया है। यही उन्होंने कहा है प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ध्यान रहे आपको, इसी में उन्होंने क्लासिकल यूनिटी की बात की है, जिसमें उन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस की बात नहीं की है। बहुत सारी बातें यहां उन्होंने कही हैं। ठीक है, चलिए वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Who is author of Beowulf? Beowulf. When you'll go through Anglo-Saxon period, जब आप Anglo-Saxon period या Anglo-Saxon literature पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, you find this name. This is an epic. एक epic है। It is a very influential epic. बहुत ही प्रभावशाली epic है, but unfortunately it is anonymous. Anonymous का क्या मतलब होता है? That when you don't know the name of the author. Anonymous simply when you do not know the name of the author. Beowulf is also sometimes known as the national epic of England. इंग्लैंड का नेशनल एपिक ये माना जाता है, but unfortunately its author, its a poet is not known to us. हमें नहीं पता है, कोई नहीं जानता। हमें नहीं पता है कि मतलब कोई नहीं जानता। तो किसने लिखा है? हमारे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है it was a collective writing, या मुझे जहाँ तक लगता है it was written in fragments and after some time it was collected at a place and produced as an epic. तो इसका जो आंसर है आपका वो है डी, नन ऑफ द एबव। मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले में नहीं पता है तो कोई इसका राइटर है जो दूसरा कोई है, ऐसा नहीं है। कोई है ही नहीं इसका राइटर, मतलब कि पता नहीं है किसने किसने मिलकर लिख दिया या किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया। नोबडी नोज, किसी को नहीं पता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When did the Battle of Hastings occur? Important question it may be. महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है ये। देखिए, you know that in 476 AD 476 ईस्वी में fall of Constantinople occurred. कुस्तुनतुनिया ढही। कब ढही? आप जानते हैं अच्छी तरीके से कब ढही, 476 ईस्वी में। When first phase of Middle Age or the Middle Age began, जब मध्य युग शुरू होता है। ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड लगभग 600 सालों तक 700 सालों तक शासन किया। मतलब एंग्लो सैक्सन पीरियड वाज प्रिवेलिंग इन इंग्लैंड और ब्रिटेन। ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन पीरियड था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रोमन से फ्लो जूलियस सीजर के समय से लगातार अटैक हो रहे थे इंग्लैंड पर। धीरे 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 रोमन्स बस गए आके इंग्लैंड में। उन्होंने एक जो जनजाति थी पिक्ट्स, जो लगातार हमले कर रही थी इंग्लैंड के ऊपर, उससे बचने के लिए एक हेड्रियंस वॉल बनाई। बाद में चले गए वो लोग, फिर रक्षा के लिए
बुलाए गए बहुत सारे दूसरे जनजाति के लोग और उन्होंने आकर यहाँ एंगल्स आए, सैक्सन्स आए, ज्यूट्स आए। ज्यूट्स चले गए तो एंगल सैक्सन्स के नाम पे एंग्लो सैक्सन पीरियड बना। समय चलता रहा, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सा युद्ध हुआ जिसमें विलियम द कॉन्करर, विलियम द फर्स्ट नाम के व्यक्ति के साथ युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध हुआ ये हुआ 1066 में। दिस इज नोन एज द एज ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का पीरियड था और जो ये बहुत भयानक सा युद्ध लड़ा गया इसे कहते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तो दिस टुक प्लेस इन 1066 AD। योर आंसर इज 1066। In 1066, Battle of Hastings took place. Your answer is A. Don't get confused. Confused कतई न होइए. Now we move to next question. Question number 7. Who was known as the morning star of Reformation? During Renaissance, two questions got great importance. First question was, who is known as the morning star of Renaissance? किसके पैदा होने पर ऐसा लगा या किसके लिटरेरी जो कैरियर था आने पर ऐसा लगा कि रेनेसा की शुरुआत अब होने वाली है? भोर के तारे के रूप में कौन आए? तो वो थे चौसर। चौसर इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन हमारा जो सवाल है, हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? रेनेसा वॉज द पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन। यू नो, इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ रिफॉर्मेशन वॉज टेकिंग प्लेस। लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार चल रहा था। सुधार का कार्य जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में चल रहा था। तो कौन ऐसा था जिसने इनकी शुरुआत की? तो आप कह सकते हैं इट वॉज जॉन वाइक्लिफ। ही इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज के पिता भी ये कहे जा सकते हैं। तो जॉन वाइक्लिफ, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन वॉज टेकिंग place in almost every field of life. It was religion, it was science, it was metaphysics, it was literature, it was art. In every field of life, Reformation was taking place. And with whom this Reformation began? With John Wycliffe. Now next question, question number 8. In which poem did Chaucer use heroic couplet for first time? अभी पीछे ये क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा कि who used heroic couplet for the first time? Who used heroic couplet for the first time? किसने पहली बार heroic couplet को यूज किया? तो उसका जो जवाब था मैंने बताया था चौसर। चौसर यूज्ड heroic couplet for the first time. चौसर ने पहली बार heroic couplet को यूज किया। Who used heroic couplet for the first time? This was another question. But where he used this for the first time? This is another question. तो चौसर was the answer. इसका मतलब जो सारी राइटिंग्स दी हुई हैं, all these writings are the writings of Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer की राइटिंग है। लेकिन जब मैं वो उत्तर दे रहा था कि जॉफ्री चौसर ने ये हेरोइक कपलेट पहली बार यूज किया है, तो उसी में मैंने उस रचना का नाम भी दे दिया था जिस रचना में उन्होंने पहली बार हेरोइक कपलेट को यूज किया था। तब देखिए मैंने स्पेलिंग जो लिखी थी वो ऐसे ही लिखी थी, एल कैपिटल यहां होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज द मिस्टेक ऑफ अ टाइपिस्ट की मिस्टेक है ये। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ Chaucer's period. चौसर के पीरियड की स्पेलिंग है ये। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन heroic couplet because it has already been explained. चौसर के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि चौसर जिस समय पैदा हुए, जब उनका लिटरेरी कैरियर शुरू हुआ, तो
English was not as strong as it is today. With the passage of time, समय के साथ साथ English improved, अंग्रेजी सुधरी. With the passage of time, English improved. समय के साथ साथ अंग्रेजी सुधरी, and we find now a lot of improvements in English. English में बहुत सारे improvements हमें देखने को अब मिलते हैं. तो The Legend of Goode Women, this is poem, this is a writing in which Chaucer used heroic couplet for the first time. Now, next question. Question number 9. Caxton. Full name of this man is William Caxton. William Caxton, a great tradesman, a great businessman, बहुत बड़ा व्यापारी. At the same time, he was a great statesman, great politician. बहुत बड़े राजनैतिक व्यक्ति भी थे, राजनेता भी थे ये. William Caxton, what he did, he set up his printing press. सवाल पूछा जाता है कि for the first time when printing press was set, तो आपका जवाब होना चाहिए कुछ और जब पूछा जाए who invented printing press, तो जवाब होना चाहिए कुछ और. लेकिन आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और विलियम कैक्सटन को ही वे इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मान लेते हैं और यही गलत हो जाता है. ध्यान रहे, विलियम कैक्सटन इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बट फॉर द फर्स्ट टाइम he set this printing press in England, and when it was 1476, 1476 ईस्वी में for the first time, while the inventor of printing press was Gutenberg. Gutenberg जो थे वो इन्वेंटर थे प्रिंटिंग प्रेस के, ये ध्यान रहे आपको. But William Caxton was not the inventor, but he for the first time set a printing press in England. ये ध्यान रहे. और साथ ही साथ which book is considered to be the first printed book? इस प्रिंटिंग प्रेस से पहली बुक कौन सी प्रिंट होकर निकली, तो आपका जवाब होना चाहिए द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय. द स्टोरी ऑफ ट्रॉय. ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय वाज द फर्स्ट परहैप्स द प्रिंटेड बुक्स पब्लिश्ड. नाउ द 1476, विलियम कैक्सटन से संबंधित जब डेट आए तो 1476, बट अगेन एंड अगेन आई से दैट विलियम कैक्सटन वाज नॉट द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय. देखिए, सोनेट पहले से ही यूरोप में लिखा जा रहा था, खास करके इटली में. वहां पेट्रार्क सोनेट लिख रहे थे. चौसर भी थोड़ा बहुत सोनेट लिखने का प्रयास किए. लेकिन अगर कहा जाए कि हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड, योर आंसर शुड बी थॉमस यॉट. थॉमस यॉट, कुछ लोग इसको गलती से भ्याट कहते हैं, but that is not Vyat, that is Yacht. Thomas Yacht introduced sonnet into England. इंग्लैंड में सोनेट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आपका जवाब होना चाहिए थॉमस याट. याट एंड सरे, these two names are very famous and these are the simultaneous names, these are the complementary names. ये एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं और जहां नजर आते हैं साथ में ही नजर आते हैं. लेकिन यहां क्योंकि ओटाया राइमा की बात अगर हम करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड in England by Surrey, but here sonnet was introduced by Thomas Yacht. Now next question, question number 11. Which was the first English tragedy? Now, it is not being asked that which was the first tragedy. Here it is being asked that which was the first English tragedy.
फर्स्ट एंड लास्ट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रहे आपको कि जब भी हम फर्स्ट और लास्ट की बात करते हैं, who was the first emperor, who was the last emperor of that dynasty, first and last become always important। फर्स्ट और लास्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये खूब अच्छे से अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। फर्स्ट और लास्ट जो भी होते हैं वो सदैव इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? वो सदैव इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी की बात चल रही है, तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जिसको हम मानते हैं वो है गॉर्बोडक। गॉर्बोडक, इट वॉज रिटन समवेयर इन 1561 to 62। 1561 से लेके 1562 के बीच कहीं लिखा गया। अगर डेट दोनों आती हैं तो आप 1561 को करेंगे, अदरवाइज 1561 62, मतलब यही है। यहां लिखा गया है गॉर्बोडक, एंड इट वॉज रिटन बाई सैकविले एंड नॉर्टन। थॉमस सैकविले एंड नॉर्टन दोनों ने मिलकर लिखा। इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सैकविले एंड नॉर्टन ने पहली ट्रेजेडी इंग्लिश में लिखी, और ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज नॉट अ कॉमन ट्रेजेडी, बिकॉज फर्स्ट इज नेवर कॉमन। जो पहला होता है वो कभी भी कॉमन नहीं होता है। गॉर्बोडक का दूसरा भी नाम एक है फोरेक्स एंड फोरेक्स या फेरेक्स पोरेक्स, ठीक है। तो यहां आपका जो जवाब होगा वो है गॉर्बोडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। From which university did the university group belong? देखिए, ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड और प्रायर टू दैट, एलिजाबेथन पीरियड में या उसके पहले, there was a group of scholars, there was a group of intellectuals, बुद्धिजीवियों का एक समूह था, दार्शनिकों का एक समूह था, ऐसे कह लीजिए, विचारकों का एक समूह था। इट वॉज कॉल्ड यूनिवर्सिटी ग्रुप। देखिए, ये यूनिवर्सिटी ग्रुप था। देखिए, शुरुआत में ऐसा माना जाता था, इन द बिगिनिंग इट वॉज सपोज दैट दिस ग्रुप कंटेन्स 7 मेंबर्स। ऐसा माना जाता था शुरुआत में कि इस ग्रुप में 7 मेंबर्स हैं, ऐसा शुरुआत में माना जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 member was removed from this group because perhaps that member was not university trained। देखिए, मैं आपको बताता हूं ये 7 मेंबर्स कौन कौन से माने जाते थे, बाद में एक कौन इसमें से हटा दिए गए। एक मेंबर थे क्रिस्टोफर मार्लो। छोटा नाम लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है लिखने की। क्रिस्टोफर मार्लो। दूसरा नाम था नैस, थॉमस नैस। तीसरा नाम है लॉज। चौथा ग्रीन। पांचवा लिली। और एक थे थॉमस किड। अभी एक नाम और छूट रहा है, कौन सा नाम हो सकता है वो? क्रिस्टोफर मार्लो, नैस, लॉज, एक नाम और पीले, जॉर्ज पीले। एक किड नाम हटा दिया गया, इनका पूरा नाम था थॉमस किड। विद द पैसेज ऑफ टाइम
we came to know that kid was not university trained. ये विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे शायद नहीं थे, इसलिए इन्हें इससे हटा दिया गया. नाउ दिस ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 6 मेंबर्स. ठीक है, और दीज स्कॉलर्स वर द स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज. ध्यान रहे, तो आपका जवाब है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज. तो यूनिवर्सिटी ग्रुप के जो मेंबर्स थे दे वर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. हु इज लोवेस्ट टॉकिंग अबाउट. लोवेस्ट जब बात करते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं? इन द फॉलोइंग लाइन्स. नीचे जो लाइन्स दी गई है, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट, ही लेफ्ट इट अ लैंग्वेज. उन्होंने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के रूप में पाया, मतलब एक लोकल लैंग्वेज के रूप में पाया, उल्टी सीधी लैंग्वेज के रूप में पाया, ठेठ के रूप में पाया, और उन्होंने एक भाषा बनाकर उसको छोड़ दिया. मतलब जब उनके पास कोई चीज पहुंची, जो आपकी जो अंग्रेजी थी, वो जब उनके पास पहुंची, किसके पास, यही आपको बताना है. लोवेस्ट किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? ही कौन है यहां? वो जो ही है वो कौन है यहां? तो जिसको जब इंग्लिश मिली तो वो केवल डायलेक्ट थी, मतलब ऐसे ठेठ थी, टूटी फूटी भाषा थी, लोकल लैंग्वेज थी. लेकिन जब इनके हाथ से निकली, इट हैज नाउ बिकम लैंग्वेज. तो ये बात कर रहे हैं चौसर की. चौसर आपका जो आंसर है दिस इज चौसर. जॉफरी चौसर इज योर आंसर. ध्यान रहे, लवेस्ट टॉक्स हियर ऑफ चौसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज Who is the father of English literature? अभी आया था who called Chaucer the father of English poetry. Now comes the question before you, who is the father of English literature? ध्यान रहे, here it is not being asked that who is the father of literature, because this question cannot be answered well. Literature की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, nobody knows. लेकिन who is known as the father of English literature? तो अंग्रेजी जब अपने महत्वपूर्ण रूप में आई, अंग्रेजी जब अपने ठीक ठाक रूप में आई, तब जो लिटरेचर लिखा गया, उस समय जिसने लिखा उसी को हम द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा. इट वुड बी बेटर, ये ज्यादा अच्छा होगा. तो यहां जो आपके सामने आपका आंसर है वो चौसर है. चौसर, कुछ लोग लॉन्गलैंड को भी कह देते हैं. समटाइम्स लॉन्गलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट दैट वुड नॉट बी गुड टू कॉल हिम द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. चौसर वुड बी बेटर, क्योंकि आपको पता है कि जो शब्द है लिटरेचर, जो वर्ड है लिटरेचर, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में आया. इट केम इनटू इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस में आया ओनली इन 19th century. अदरवाइज इट वॉज पोएट्री. इससे पहले सब कुछ क्या था? पोएट्री था. तो अगर हम कहते हैं कि चौसर वॉज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो इट वुड नॉट बी बैड टू कॉल दैट ही वॉज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट? किन्हें हम कवियों का कवि कहते हैं? Who is known as poet's poet? किन्हें हम कवियों का कवि कहते हैं? During Elizabethan period, there was a poet, Edmund Spenser. एक पोएट थे एडमंड स्पेंसर, लिखा हुआ एडमंड स्पेंसर, who was born in 1552 and died in 1599. You can see that this was almost Elizabethan period because Queen Elizabeth ascended the throne in 1558 and she died in 1603. तो इनका भी जो लिटरेरी कैरियर था एडमंड स्पेंसर का, मोस्टली एलिजाबेथन पीरियड में था, एलिजाबेथ फर्स्ट के पीरियड में था. He was known for his power of imagery. एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन इन्हीं की रचनाएं हैं.
एमोरेट्टी आप जानते होंगे, ठीक है। तो कवियों के कवि मैथ्यू आर्नल्ड ने इन्हें बोल दिया पोएट्स पोएट, कवियों के कवि हैं। एंड हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन इन्फ्लुएंस जॉन कीट्स द मोस्ट, जॉन कीट्स को इनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन ने, पावर ऑफ इमेजरी ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो आपके जो पोएट्स पोएट हैं, कवियों के जो कवि हैं, वो कौन है? एडमंड स्पेंसर। Edmund Spenser at the same time is also known as the second father of English poetry. इंग्लिश पोएट्री के ये दूसरे पिता भी कहे जाते हैं। लेकिन अभी पोएट्स पोएट की बात है, तो यहां पोएट्स पोएट हैं आपके एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कम, हु रोट एसे ऑन मिल्टन? एसे ऑन मिल्टन, अगर किसी साहित्यकार के ऊपर, खास करके महत्वपूर्ण साहित्यकार के ऊपर, महत्वपूर्ण पोएट के ऊपर और मिल्टन जैसे पोएट के ऊपर अगर कोई कुछ लिखता है, तो वो एक तरीके का क्रिटिक हो जाता है। क्रिटिक, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिक? क्रिटिसिज्म, अ बुक दैट इज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, अ राइटिंग दैट इज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। एक रचना जो पूरी आलोचना से भरी हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिक। तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ क्रिटिक। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक एसे है, ये बताने की कतई जरूरत नहीं कि दिस इज एन एसे, क्योंकि एसे ऑन मिल्टन लिखा ही है, ठीक है। तो ये व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग एक्चुअली इट इज? एसे ऑन मिल्टन, दिस इज द टाइटल ऑफ द राइटिंग, ये राइटिंग की टाइटल है। अब सवाल ये उठता है किस तरीके की राइटिंग है? दिस इज अ क्रिटिक, मिल्टन के ऊपर इन्होंने अपनी समालोचना व्यक्त की है। और हु हैज रिटन दिस राइटिंग? दिस वाज रिटन बाय लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले कितने पॉपुलर व्यक्ति हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली है। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में डालते हैं, और एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन इन्होंने पोएट्री की दी हुई है, वो मैं आपको बताता हूं, उसे आप याद रखिएगा। दैट इज वेरी नाइस डेफिनेशन, मैं लिख देता हूं, ये देखिए। Poetry is an art doing by the means of words what a painter does by the means of colors. This is the definition of poetry by Lord Macaulay, Who gave this definition? मैकाले। मैकाले ने कहा पोएट्री शब्दों के साथ वही करना होता है जो एक पेंटर अपने रंगों के साथ करता है। पेंटर जो रंगों के साथ करता है तो पेंटिंग बनती है, उसी तरीके से जब कवि शब्दों के साथ कुछ करता है तो कविता बनती है। तो लॉर्ड मैकाले ने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, Who ruled England during the Jacobean age? देखिए जो जैकोबियन पीरियड है, जैकोबियन पीरियड कम्स आफ्टर एलिजाबेथन पीरियड। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था, ये देखिए एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड ये रहा 1558 to 1603. Queen Elizabeth I ascended the throne here in 1558 and she died in 1603. And after this period comes Jacobean period. इसी पीरियड की बात इस क्वेश्चन में की जा रही है। Jacobean period. This period was right from 1603 to 1625. ठीक है, तो
यहां यही पूछा जा रहा है कि इस समय में शासन किसका था, तो इस समय में शासन जो था वो जेम्स फर्स्ट का था। इट वॉज द टाइम ऑफ जेम्स फर्स्ट। एलिजाबेथ ने शासन किया 1500, ठीक है, 58 से 1603 तक। उसके बाद आते हैं आपके जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के समय में बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड into English in 1611, ऑफिशियल वर्जन अंडर द सुपरविजन ऑफ जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट की मृत्यु के बाद चार्ल्स फर्स्ट 1625 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर। योर आंसर इज जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मिल्टन्स कोमस इज गॉड ऑफ रिवलरी। गॉड ऑफ रिवेलरी, मौज मस्ती के देवता है, शराब के देवता ऐसे समझ लीजिए आप। वो बख्शस होते हैं, उसी के नजदीक ये भी हैं। शराब के देवता गॉड बख्शस, उसी के नजदीक ये भी हैं गॉड ऑफ रिवेलरी, मौज मस्ती के देवता। कोमस किस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये इसका जो फॉर्म है दैट इज अ मास्क। कोमस इज एक्चुअली अ मास्क। कोमस क्या है? कोमस एक मास्क है, ध्यान रहे आपको। कोमस इज अ मास्क, ठीक है। इट हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ मास्क, मिल्टन की राइटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, द एपिथेट ऑगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्राइडन बाय। ध्यान रहे जो अलेक्जेंडर पोप का पीरियड था, अलेक्जेंडर पोप का जो पीरियड था उसी को हम ऑगस्टन पीरियड कहते हैं। Because Augustan age in history was considered to be the golden age, तो जो पोप का पीरियड था वो न्यू क्लासिकल एज का जो पीरियड था उसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उसे एज ऑफ पोप ना कह करके, पोप का पीरियड ना कह करके, न्यू क्लासिकल का एक हिस्सा ना कह करके उसे ऑगस्टन पीरियड किसने कहा? किसने कहा पहली बार? द एपिथेट ऑगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्राइडन बाई। सवाल ये उठता है कि ड्राइडन का जो पीरियड, पोप का पीरियड बिल्कुल करीब करीब था। आपको पता है ड्राइडन के लिए जो ऑगस्टन पीरियड आया, पोप का पीरियड इनके थोड़े से बाद आता है, ठीक है। ड्राइडन के लिए जो ऑगस्टन शब्द यूज किया गया, ऑगस्टन फर्स्ट अप्लाइड टू, ड्राइडन की जो पोएट्री थी, ड्राइडन की जो राइटिंग थी, उसको किसने ऑगस्टन कहा? ड्राइडन नाम हटा करके उसके स्थान पर ऑगस्टन क्यों कह दिया? क्योंकि गोल्डन पीरियड था। तो जिसने भी कहा इट वॉज डॉक्टर जॉनसन। ध्यान रहे ऑगस्टन पीरियड, ड्राइडन के लिए ऑगस्टन शब्द का यूज पहली बार किसने किया? एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। यहां ध्यान रहे आपको, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। तो किसने कहा? इट वॉज डॉक्टर Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson said this. Now next question. Who gave the name metaphysical poet to Donne? Donne को किसने metaphysical poet कहा? Which came to be applied to other poets too. जो बाद में और बहुत सारे कवियों के लिए applied हो गया, बहुत सारे कवियों के ऊपर भी ये सेट बैठने लगा। किसने डन को metaphysical poet कहा? ये देखिए, तो यहां मेटाफिजिकल पोएट जो स्कूल है, इसको देखिए, अगर कहा जाए कि डन को किसने मेटाफिजिकल पोएट कहा, डन को, ठीक है, तो होगा जॉन ड्राइडन। बिकॉज जॉन ड्राइडन इन हिज डिस्कोर्स ऑफ सैटायर सेड डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ठीक है, डन के लिए उन्होंने पर्सनली कहा। लेकिन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की जो बात करते हैं वो डन के साथ और बहुत सारे लोगों के लिए जो करते हैं वो है डॉक्टर जॉनसन। ध्यान रहे आपको, डॉक्टर जॉनसन। मेटाफिजिकल आप जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ इमोशंस एंड इंटेलेक्ट। So this much is for today. All these questions were very important, so you must be very careful of whatever we studied today. At least one question will find out of these questions. Thank you.